بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شیخ انصاری صاحب ان استبعادات کی تردید کر رہے ہیں کہ جسے جناب شیخ جعفر کاشف الغطا نے قواعد جدیدہ کے عنوان سے پیش کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم معاطات میں مشہور کے نظریے کے مطابق اباحت التصرف کے قائل ہو جاتے ہیں اور ان کی نیت متعاطیین کی تملیک ہے تو اس سے 7-8 عدد قواعد جدیدہ لازم آتے ہیں۔ ان قواعد جدیدہ کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، اور پھر جواب دینے کے بعد آخر میں پھر واپس پلٹ کر کے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ سارے استبعادات فی محل ہی ہیں، یعنی اشکال وارد ہیں۔ گفتگو یہاں پہنچی تھی کہ چونکہ تھوڑا فاصلہ ہو گیا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سابقہ بحث کو تھوڑا سا آج کی بحث سے جوڑا جائے۔ وہ یہ ہے کہ تلف مملک ہو جانبین کی طرف سے، یعنی ایک طرف اگر تلف ہو جائے تو یہ تلف ہونا سمن کا یا مبی کا یا مسمن کا دونوں کے لیے مملک ہوگا۔ اس صورت میں یہ جو تملیک ہے، یہ جو تملیک جس کے آپ قائل ہو رہے ہیں، اس کے لیے اوپر دلیل کیا ہے؟ جواب دلیل کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے۔ سیرت مستمرہ جو معاطات کے سلسلے میں چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جب متعاطیین لین دین کرتے ہیں قصد تملیک کے ساتھ، تو جو ہی شے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوئی، مالکانہ تصرف اس کے اوپر شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کے پاس جو شے تلف ہو جائے وہ اس کی جیب سے گئی ہے، وہاں سے تلف ہوئی ہے، طرف مقابل کی طرف وہ رجوع نہیں کرتا۔ تو یہ جو تلف ہے مملک ہے۔ اس کو کہنے کی قاعدے جو جدیدہ لازم آتا ہے، اس کا جواب میں نے یہ دیا کہ دیکھیے اجماع یہ کہہ رہا ہے کہ جب لین دین ہوا ہے تو اس صورت میں اگر آپ ملکیت کے قائل ہیں تو اس صورت میں ایک طرف سے تلف ہو کر کے دوسری طرف کے جو ملکیت بنا رہے ہیں، یہ اجماع کہہ رہا ہے کہ اگر ذمہ داری آتی ہے تو جو طے ہوا ہے معاملے کے اس کے اعتبار سے ذمہ داری آتی ہے۔ استصحاب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اصل ایک دوسرے کے مالک نہیں ہوئے، جس کی ملکیت میں جو شے تھی وہ اسی کی ملکیت میں باقی رہے گی۔ اور ادھر سے قاعدہ ید یہ کہہ رہا ہے کہ جو جس چیز کا دوسرے کے لیے ہوئے ہے وہ اس کا ضامن ہے، جیسی چیز اس کے پاس گئی تھی اگر اس نے اس کو تلف کیا، خراب کیا، بگاڑ دیا تو ویسی ہی واپس کرے۔ ان تینوں کے جمع کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم معاطات میں آننما ملکیت کے قائل ہو جائیں۔ اس آننما ملکیت کے قائل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علیکم السلام۔ وجہ یہ ہے کہ اجماع کہہ رہا ہے کہ ضامن نہیں ہے، نہ مثل کا نہ قیمت کا۔ استصحاب کہہ رہا ہے کہ ضامن ہے، قاعدیت کہہ رہا ہے کہ جیسی شے تھی اس کا ضامن ہے، مثلی کا مثل میں، قیمے کا قیمے میں، قیمت کا۔ اور ان کے جمع کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ تلف کو مملک مان رہے ہیں تو جیسے ہی تلف ہوگی، اب آخرین وقت تلف، اس وقت تک استصحاب ملکیت کو نہیں بتا رہا ہے، تلف کے وقت ہی انسان جو ہے اس کا مالک ہو اور دونوں طرف جو ہے ملکیت بدل آ جائے، یعنی تلف کی وجہ سے ملکیت آننما آ جائے، تو جس کے پاس وہ شے ہے اس سے تلف ہوئی ہے۔ نہ تو تلف ہونے سے پہلے ہم اس کو ضامن بنا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب عدم ملک کہہ رہی کہ تم اس کے مالک نہیں ہو۔ قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ مالک ہو، تو اور تلف ہونے کے بعد بھی ہم اس کو مالک نہیں بنا سکتے، کیونکہ تلف ہو جانے کے بعد معدوم شے کے اوپر ملکیت نہیں آ سکتی۔ یہ انہوں نے اتنا ذکر کیا تھا۔ اب یہ جو آننما ملکیت کی بات تھی
कैसे उसी वक्त जैसे तलफ होगा वैसे मिल्कियत आएगी, इसको हमने आखिर वक्त का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है इसके ऊपर बहस है। कहाँ से पढ़ें, तौज़ीहू से या उसके बाद से? जी, तौज़ीहू से बेहतर है। इन्नल इजमा लम्मा दल्ला अला अदम ज़मानिही बिमिस्लिही औ क़ीमतिही। चूँकि इजमा क्या क्या कह रहा है, सीरत मुस्तमिरा हला इजमा कहें, इजमा दलालत कर रहा है कि मुआतात में जो लेन देन हुआ है उसमें कोई ज़मानत नहीं है, न मिस्ल की ज़मानत है न कीमत की ज़मानत है। मामला हो गया क़स्द तमलीक था, जब क़स्द तमलीक था तो हर एक के पास वो शय मुंतकिल हो गई, वो उसका मालिक है, किसी किस्म की ज़मानत नहीं है। हुक्म बेकौन तलफ मिन माल ज़िलियत, ज़िलियत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मुतआतियन में समन और मुस्मन दोनों इधर उधर हुआ है ना, तो जो जिस चीज़ का मालिक था उसके हाथ से वो शय तलफ हुई है, मुकाबिल में मसलन जो तलफ आया है, देखिए इबारत पे तवज्जो करें, हुक्म बेकौन तलफ मिन माल ज़िलियत, क्यों हम ज़िलियत के माल से तलफ का हुक्म लगा रहे हैं, अलैकुम अस्सलाम, रिआयतन लिउमूम अलल यद मा अखज़त, क्योंकि हम कायदा जो अलल यद मा अखज़त है ये कह रहा है कि जिसने जिसका माल लिया है वो उसका जामिन है। अब अगर हम जैद और अम्र को फ़र्ज करें, जैद ने किताब बेची है, अम्र ने उसके मुकाबिल में दूसरी मसलन कागज़ और कलम दिया है, कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे जैद और अम्र दोनों का असल जो माल है वो एक दूसरे को दिया गया है। हुक्म शरई ये है कि अलल यद मा अखज़त हत्ता तुअद्दी, जिसने लिया है वो उसका जामिन है जब तक कि उसको अदा न कर दे। जैद की किताब है अम्र के हाथ में, अम्र उसका मालिक है कि उसे वापस करे, जैसा मालिक है वैसे वापस करे, जैसी शय है वैसे वापस करे। उधर अम्र ने मुकाबिल में कलम या जो चीज़ दी है, जैद जो उसके पास कलम है वो उसका मालिक है, वैसी ही वापस करे। अब अगर इनमें से कोई एक तलफ हो जाए, हला तलफ कहरी हो आसमानी बला की वजह से या खुद तोड़ फोड़ दे, तो चूंकि ये हम ये कहने कि तलफ मुमल्लिक है, और तो फिर ये तलफ मुमल्लिक कब होगा, ही न तलफ मुमल्लिक होगा, हमने ये कहा ना। तो कहने की कायदेयत कह रहा है कि कलम अम्र वापस करे, अम्र के जैद वापस करे, और जैद ने जो किताब दी है अम्र को वो उसको वापस करे वैसी ही जैसी है। यानी अललियत का कायदा ये क्या कह रहा है कि मिस्ल है तो मिसली, कीमत वाली शय है तो कीमत उसकी देना पड़ेगा। उधर से इजमा क्या कह रहा है, इजमा कह रहा है ना मिस्ल के जो है जिम्मेदार हैं ना कीमत के जिम्मेदार हैं। तो कहने की इस हुक्म बेकौन तलफ मिन माल ज़िलियत, साहिब यद से वो शय गई है, इसका हुक्म लगाने की वजह क्या है, रिआयतन लिउमूम अलल यद मा अखज़त, क्योंकि ये जो कायदा है अलल यद मा अखज़त, इसकी रिआयत करने के लिए, इसके ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि हम तलफ को साहिब यद की तरफ से मानें। फ़ज़ालिकल इजमाउ माल उमूमिल मज़कूर बिमंज़िलतिर रिवायतिल वारिदति फ़ी अन्ना, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि अगर मामला हुआ सही मामला बाए और मुश्तरी के दरमियान, और मामला हो जाने के बाद बाए ने कीमत ले ली, मुश्तरी से कीमत ले ली, और फिर वो शय को उसने इक़बाज़ नहीं किया, मुश्तरी के हवाले नहीं किया, तो कायदा कुल्लिया सिर्फ नहीं है बल्कि रवायत मौजूद है कि बाए जब तक इक़बाज़ न करे इसको, मुश्तरी को, अगर उसके पास वो शय तलफ हो जाए बाए के पास तो उसे देना पड़ेगा। कैसी देना पड़ेगा, जो तय हुई है उसके एतबार से उसकी कीमत या अरे वो शय देना पड़ेगा। कायदा बनता है ये कि ये इजमा और उमूम में मज़कूर जो भी कायदेयत की बुनियाद पर हमने कहा है बेमंज़िलतिर रिवायत, ये बिल्कुल एक रवायत के मानिंद हो जाएगा जो वारिद हुई है इस मसले में कि अन्न तलफ़ल ममी क़ब्ल क़ब्ज़िही मिन माल बायिही, जिसने बेचा है जब तक इक़बाज़ नहीं किया है तब तक कीमत लेने के बाद किसके हाथ से तलफ होगी, वो शय बाए की तरफ से होगी। बाए जिम्मेदार है कि उसकी जैसी शय बेची है जो तय हुआ है उसके एतबार से दे। मसलन
कीमत लेने के बाद मोबाइल जो भी किस्म का तय हुआ हो वही मोबाइल उसे देना है। तो यहाँ पे देखिए तलफ कहाँ से हुआ है, बाए के हाथ से हुआ है, बाए के यहाँ से तलफ हुआ है। जिम्मेदार बाए है। कैसे हमने कहा कि बाए जिम्मेदार है, वैसे ही कायदे-यद ये कह रहा है कि जिसने जो शय ली है, उस जिसके यहाँ से वो तलफ हुई है, वो उसी के मानिंद उसको वापस करेगा, देगा। तो कायदे-यद की उमूमियत दलालत कर रही है कि मबी जब तलफ हो जाए, बाए के यहाँ से तलफ हुई उसे देना है। ये कायदा इस तंजीर के तौर पर, मिसाल के तौर पर जिक्र किया गया है। फ़ैज़ा क़ुद्दिरत तलफ़ु मिन माले ज़िल-यद फ़ला बुद्दा मिन अन युक़द्दर फ़ी आख़िर अज़मनत इम्कान तक़दीरिही। तवज्जो करें, इस्तिस्हाब ये कह रहा है कि एक दूसरे के मालिक नहीं हुए हैं, जो जिसकी शय है उसकी मिल्कियत पे बाकी रहेगी। लेन देन हुआ, लेन देन किस नीयत से हुआ है, तमलीक की नीयत से, तमलीक के कस्द से लेन देन हुआ है। यहाँ पे इस्तिस्हाब कह रहा है कि ज़ैद ने जो शय अम्र को दी है और अम्र ने जो शय ज़ैद को दी है वो उसके मालिक नहीं है। कब तक मालिक नहीं है? जब तक तलफ ना हो जाए। यही है ना इबाहतुत तसर्रुफ में। मुझे यहाँ पे दोबारा इसको मुफस्सल बयान करना पड़ेगा, तवज्जो करें। मशहूर का नजरिया क्या है कि इबाहतुत तसर्रुफ सिर्फ आता है, मिल्कियत कब होगी? जब वो तसर्रुफ मालिकाना करेंगे, या तलफ हो जाए या जो वजहें बताए गए हैं तोड़ फोड़ दी जाए, तब वो मालिक होगा। यहाँ पे कायदे-यद कह रहा है कि जो आपने एक दूसरे से लिया है वो उसके आप जामिन हैं। ऊपर से इस्तिस्हाब कह रहा है कि मिल्कियत नहीं आई है, जब तक तसर्रुफ ना हो, जब तक तलफ ना हो, तब तक मिल्कियत नहीं आई है। और हुक्म मशहूर क्या है? इबाहतुत तसर्रुफ सिर्फ। तो इस सूरत में अगर आसमानी कहरी तौर पर कोई शय एक तरफ, दोनों में से किसी एक तरफ तलफ हो जाए, तो इस तलफ को किसका माना जाए, किसके यहाँ से तलफ माना जाए? कायदा-यद कह रहा है कि जिसके पास जो शय है, जिसकी मिल्कियत है, उसके वो जामिन होगा। ज़ैद के मालिक, ज़ैद का माल अम्र जामिन होगा, अम्र का माल ज़ैद जामिन होगा। कायदे-यद क्या कह रहा है कि आप उसके मालिक नहीं हैं, आपके पास वो रखी हुई है, जब तक है तब तक आप उसे वापस करिए, अगर तलफ हो जाए तो उसके मिस्ल या उसकी कीमत देना होगा। ये कह रहा है ना। उधर से इस्तिस्हाब कह रहा है, इस्तिस्हाब ये कह रहा है कि जब तक तसर्रुफ नहीं हुआ है, जब तक तलफ नहीं हुआ है, तब तक आप उसके मालिक नहीं हैं। सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ है, इस्तेमाल करने की इजाजत है, मिल्कियत आपकी नहीं। इसलिए जब मशहूर ने ये कह दिया कि तलफ से या तसर्रुफ से मिल्कियत आती है, तो ये मिल्कियत कब आएगी? जिस वक्त तलफ हो उस वक्त मिल्कियत आएगी। मैं बात समझा पा रहा हूँ या नहीं? इस्तिस्हाब कह रहा है कि मिल्कियत है ही नहीं, कायदे-यद कह रहा है कि तुम जामिन हो, कायदे-यद कह रहा है कि तुम जामिन हो। अगर तुम्हारे यहाँ तलफ हुआ है, अगर वो ऐन शय जैसी है वैसी देना पड़ेगा, अगर कीमी है तो उसकी कीमत देना पड़ेगा। इस सूरत में अगर हम तलफ को मुमल्लिक मानते हैं, तो इस मुमल्लिक के मानने के लिए ज़रूरी ये है कि इस्तिस्हाब कर अभी मालिक नहीं हो, अभी मालिक नहीं हो, अभी मालिक नहीं हो। कब मालिक होगे? जब तलफ हो जाए। यही बताना चाह रहे हैं कि फ़ैज़ा क़ुद्दिरत तलफ, अगर हम आप इस तलफ को क्या क़ुद्दिरा यानी मिल्कियत आवर मान रहे हैं, आसमानी तलफ हो या इस्तेमाल करने की वजह से, तो तलफ कब होगा? मिन माले ज़िल-यद, साहिब-यद की तरफ से होगा। जब साहिब-यद की तरफ से होगा, लाबुद्द मिन अन युक़द्दर, इस तलफ को फर्ज किया जाए, फ़ी आख़िर अज़मिनत इम्कान तक़दीरिही, आखिरी मरहले तक, जिस मरहले में जिस वक्त तलफ हो उस वक्त उसे तलफ को मुमल्लिक करार दिया जाए। क्योंकि मशहूर ने क्या कहा है कि इबाहतुत तसर्रुफ है, इस्तिस्हाब कह रहा है मालिक नहीं हुए, कायदे-यद कह रहा है कि जामिन हो, कायदे-यद कह रहा है जामिन हो, मिस्ली में मिस्ल के, कीमे में कीमत के। उधर से इस्तिस्हाब कह रहा है कि मिल्कियत आई नहीं है, और अब आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तलफ मुमल्लिक है। तो मुमल्लिक कब बनाएं? जिस वक्त मामला हुआ उसी वक्त से नहीं। क्यों? इसलिए कि इस्तिस्हाब कह रहा है मिल्कियत नहीं है, और कायदे-यद कह रहा है कि जामिन हो उस वक्त की जिस वक्त वो शय तलफ हो जाए। तो कहने की इस्तिस्हाब को बचाने के लिए, इस्तिस्हाब का कायदा बचाने के लिए उधर से
कायदेयत को ख्याल रखते हुए, और उधर से मुआतात में तसर्रुफ मुमल्लिक है, इसको समझने, इसकी रियायत करने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस वक्त तसर्रुफ कर रहा है या जिस वक्त तलफ हो रहा है वो तलफ मुमल्लिक हो, वह उससे पहले नहीं। इसलिए लाबुद्द मिन युक़द्दर फी आखिर अज़मनत इम्कान तक़दीर। क्यों ऐसा, क्यों? रिआयतन लिअसालत अदम हुदूसिल मिल्कियत क़ब्लहु क़ब्ल अज़ तलफ। इस्तिस्हाब कह रहा है कि तुम इसके मालिक नहीं हो, जिसकी शय है वो उसका मालिक है ना। तो हुदूस मिल्कियत अभी नहीं हुई है। क्यों हुदूस मिल्कियत नहीं हुई है? क्योंकि इस्तिस्हाब अदम में मिल्कियत, हमने बयान किया था कि मुआतात में लेन देन कस्ते तमलीक से ज़रूर हो रहा है, लेकिन क्या मिल्कियत आ जाएगी? आपको शक हो रहा है कि मुआतात के लेन देन करने की बिना पे मिल्कियत हासिल हुई या नहीं। हम कहेंगे जिसकी शय है उसकी मिल्कियत बाकी है। तो इस्तिस्हाब अदम हुदूस मिल्कियत तरफ मुकाबिल के लिए ये बता रहा है कि जब तक ये शय तलफ नहीं हुई है, जब तक आपने इसके अंदर तसर्रुफ नहीं किया है, तब तक मिल्कियत हादिस नहीं हुई है। वाज़ेह हो रही बात। इस अदम हुदूस मिल्कियत, दूसरे लफ्जों में इस्तिस्हाब को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात के कायल हो जाए जिस वक्त तलफ हो रही है उसी वक्त मिल्कियत आ रही है, उससे पहले नहीं। क्यों? इसलिए कि इस्तिस्हाब कह रहा है मिल्कियत नहीं है, उसके बाद नहीं, क्योंकि मादूम शय के ऊपर मिल्कियत हासिल नहीं होती। असालतन लिअदम हुदूसिल मिल्कियत क़ब्लहु कमा युक़द्दरु मिल्कियतुल मबी लिल बाए। जैसे कि अभी हमने जो असल मामले में हमने कहा था कि अगर जैद ने अम्र को कोई चीज बेचा, जैद बाए है मगर शय को उसके हवाले नहीं किया है, जैद ही के पास वो शय क्या हो जाए? तलफ हो जाए। क्या जिम्मेदारी है? मुश्तरी के लिए उसे चाहिए कि मबी के ऊपर, चूंकि आप दे चुके हैं तो मुश्तरी की मिल्कियत है, तवज्जो करें इस पे। अगर आप उसके मामला कर चुके हैं तो जो शय बाए के पास है, मामला हो जाने के बाद समन ले चुका है, तो अब ये मबी के ऊपर किसकी मिल्कियत है? मुश्तरी की। हम कह रहे हैं कि ये मुश्तरी की मिल्कियत जरूर है, लेकिन जब तक तलफ ना हो जाए बाए की, आनन मा उसके ऊपर मिल्कियत आ जाएगी तलफ होने की वजह से। जब इसके ऊपर मिल्कियत आ जाएगी तो इसके जेब से तलफ हुआ है, किसके? बाए की जेब से तलफ हुआ है। अब इसके ऊपर जरूरी है, लाजिम है कि मबी को जैसी मामला हुआ है, जैसा मामला हो वैसे ही अता करे। मुतवज्जे हैं? मबी मुश्तरी का हक है क्योंकि समन ले चुका है। इस समन के ले लेने की वजह से मबी के ऊपर बाए का कोई हक नहीं है, अमानत के तौर पर गोया है। मगर क्या कहा जा रहा है कि मबी अगर इकबाज करने से पहले तलफ हो जाए तो किसकी जेब से जाती है? मबी बाए की जेब से जाती है। तो बाए तो उसका मालिक नहीं था, उसकी जेब से क्यों गई? जवाब इसका यह है कि जब तक तलफ नहीं हुई है वो शय, वो मबी जिसको देना है, तब तक इसकी मिल्कियत नहीं थी। कब मिल्कियत बनी? जैसे ही ये मबी तलफ हुई बाए की मिल्कियत बनी और बाए की मिल्कियत से गई है। लिहाजा उसकी जिम्मेदारी क्या है कि मुश्तरी के को हवाले करे। यही सूरत यहाँ पे भी है, यही सूरत तलफ में भी यही है। इस्तिस्हाब कह रहा है मिल्कियत नहीं है, कायदेयत कह रहा है जैसी शय ली है वैसी दी जाए। इधर से तलफ को हम कह रहे हैं कि आनन मा मिल्कियत फर्ज करेंगे। क्यों आनन मा मिल्कियत फर्ज करेंगे? क्योंकि इस्तिस्हाब माने हो रहा है, जब तक इस्तिस्हाब क्या कर रहा है? माने हो रहा है कि इसमें मिल्कियत हादिस नहीं हुई है। जो ही तलफ हुआ, तलफ जो है मिल्कियत आवर हो जाएगा। ये तशबीह दे करके आपको समझा रहे हैं। कमा युक़द्दरु मिल्कियतुल मबी लिल बाए, जैसे कि फर्ज की जाएगी मिल्कियत किसके लिए? बाए के लिए। कैसे बाए के लिए मिल्कियत फर्ज की जा रही है? वो तो पहले से उसके पास है। आपका जवाब क्या होगा? नहीं, ये मुश्तरी की मिल्कियत है, क्योंकि मुश्तरी समन दे चुका है। लिहाजा आपको क्या मानना पड़ेगा? ये मबी जो बाये के पास है, समन ले लेने की वजह से मिल्कियत किसकी है? मुश्तरी की है, अमानत के तौर पर इसके पास है। जैसे ही तलफ होगी, तलफ मुश्तरी की मिल्कियत से होना चाहिए। नहीं,
क्योंकि मुश्तरी समन दे चुका है। किसकी तरफ से ये तलफ होगा? बाये से तरफ होगा। बाये तो मालिक इसका था नहीं। जवाब इसका ये कि आननमा, जैसे ही तलफ होगी वो शय उसके ऊपर मिल्कियत आननमा बाये की आएगी, इसकी जेब से जाएगी। यही सूरत मुआतात में है रहमुकुमुल्लाह, यही सूरत मुआतात में भी हम कह रहे हैं कि मिल्कियत नहीं है। इस्तिसाब कर रहा अदम में मिल्कियत, दोनों की मिल्कियत नहीं है। समन या मुसमन में से जब भी वो तलफ होगा, तलफ होते ही उसी की मिल्कियत बन जाएगी जिसके हाथ में वो शय है। अलल यद वाली कायदा कह रहा है कि जिसके हाथ में जो शय है उसका वो जामिन बन जाएगा। इस्तिसाब कर रहा मिल्कियत नहीं बनेगी। लिहाजा मशहूर के नजरिए की बुनियाद पर तलफ को जो हम मुमल्लिक मान रहे हैं, ये कहेंगे आनन मा, जिसके पास वो शय है उसी की जेब से तलफ हुई है, उसका वो मालिक हो गया है। तरफ मुकाबिल को उसके मिस्ल या उसकी कीमत देनी पड़ेगी कायदेयत की बुनियाद पर, वरना मुआतात में क्या है, ऐसा नहीं है। एक मिसाल ये है कमा युकद्दर, दूसरे वफस्कुल बैए मिन हीन तलफ इस्तिसाबन ले असरिल अक़द। इस्तिसाब क्या कह रहा है कि मिल्कियत हासिल नहीं होगी। उधर से बै में अगर शय तलफ हो जाए या मामला फस्ख कर दिया जाए, तो हम मामला फस्ख करने में क्या कहते हैं, जिस वक्त तलफ हुई है वो उस वक्त से मिल्कियत हासिल होगी, या जिस वक्त मामला फस्ख किया है उस वक्त मिल्कियत वापस होगी। जवाब इसका यह है इस्तिस्हाबन ले असरिल अक़द। अक़द जो हुआ है वो ये कह रहा है कि ये एक दूसरी मिसाल है, एक मबी के बाए के पास से मबी के तलफ होने की मिसाल थी। दूसरी मिसाल ये है कि अगर मामला हुआ है, मामला सही तरीके से हुआ है, तो दोनों की जिम्मेदारी क्या है, समन की जिम्मेदारी, मुश्तरी की जिम्मेदारी है समन अता करे, बाए की जिम्मेदारी है मुस्मन को हवाले करे। वाज़ेह है। मामला जब फस्क किया तो फस्क करने की सूरत में क्या होगा, समन को मुश्तरी के हवाले करना होगा और मुस्मन को बाए के हवाले करना पड़ेगा। फस्क की सूरत में ये कह रहे हैं कि जब अक़द हो चुका है, अक़द सही का इस असर क्या है कि समन और मुस्मन एक दूसरे की तरफ मुल्कियत मुंतकिल हो। अक़द के सही होने का असर ये है कि समन बाए की मिल्कियत में आए और मुस्मन मुश्तरी की मिल्कियत में जाए। जिस वक्त मामला हुआ उस कायदे के तहत कि जब अक़द सही हुआ है तो समन बाए की मिल्कियत में, मुस्मन मुश्तरी की मिल्कियत में जाना चाहिए। लेन देन हो गया, फर्ज कर ले 10 दिन का ख्याल रखा था, 10 दिन तक का ख्याल रखा था, आपने 9वें दिन मामले को बातिल कर दिया। इस्तिसाब मामला हो जाने के बाद इस्तिसाब क्या कह रहा है, समन मुश्तरी की समन बाए की मिल्कियत थी, मुस्मन क्या है, मुश्तरी की मिल्कियत थी। नतीजा ये है कि उस वक्त तक मिल्कियत तो जरूर है। इस्तिसाब असर अक़दी की बुनियाद पर मैं अगर समझा पा रहा हूँ तो ये है, तवज्जो करें। मामला हुआ, 10 दिन के ख्याल रखा गया, मुश्तरी ने कीमत दी बाये को और बाये ने मबी दी इसको मुश्तरी को। हर एक असर अक़द क्या है कि असर समन और मुस्मन एक दूसरे के मुंतकिल हो चुका है ना। ये सिलसिला बाकी रहेगा। 9वें दिन आपने मामले को फस्क कर दिया, बातिल कर दिया, तोड़ दिया या ख्याल शर्त जो है इस्तेमाल कर ली। नतीजा क्या होगा, उस वक्त तक असर बै की बुनियाद पर, इस्तिसाब की बुनियाद पर असर अक़द ये था कि मुस्मन के ऊपर मुश्तरी मालिक है और समन के ऊपर बाये मालिक है। अक़द तोड़ दिया गया, तो अब जब अक़द तोड़ दिया गया तो इस सूरत में समन और मुस्मन एक दूसरे की तरफ मुंतकिल होगा। अगर इस दौरान तलफ हो जाए, तो कब से तलफ कहलाएगा, इसी को बताना चाह रहे हैं। वफस्खु अलबै मिन हीन तलफ इस्तिस्हाबन ले असरिल अक़द। अक़द के असर का इस्तिस्हाब करने के लिए लाजिम है कि मुश्तरी के पास जो मुस्मन है वो उसका मालिक रहे उस वक्त तक जब तक तलफ नहीं हुआ है, और बाये समन का मालिक रहे उस वक्त तक जब तक कि तलफ नहीं हुआ है। कैसे मामला फस्ख करने में शय को लेन देन वापस करते हैं, वैसे ही तलफ क्या है, हीन तलफ, इंसान उस इस्तिसाब के
عقد کے اثر کے استصحاب کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس وقت تلف ہو رہا ہے اس وقت سے معاملے کا اثر ظاہر ہو۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ صُورَةِ غَصْبِ الْمَأْخُوذِ بِالْمُعَاطَاةِ، ایک مسئلہ اور یہ تھا، جناب شیخ جعفر کبیر نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر غاصب مال کو لے جائے، کس کے پاس سے لے گیا ہے؟ معاملہ ہو چکا ہے، ماخوذ بالمعاطات ہو چکا ہے، جس کی طرف وہ شے منتقل ہوئی ہے وہ اس سے جو ہے غاصب نے اٹھا لیا، کون اس کا ضامن ہوگا؟ ایک مرتبہ وہ لے کر کے گیا ہے، ابھی اس نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، یا اس کو تلف نہیں کیا غاصب نے، یا بیچ دیا ہے یا ہبہ کر دیا، کچھ بھی اگر نہیں کیا ہے تب کون مطالبہ کرے گا، اور اگر تلف کر دیا ہے تو کون مطالبہ کرے گا؟ جناب شیخ جعفر کبیر نے یہ کہا تھا کہ مطالب کون ہوگا، مطالبہ کرنے والا کون ہوگا؟ جس کے پاس سے وہ شے ماخوذ ہوئی ہے۔ ہم آج یہ جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، مطالبہ اگر اصل شے باقی ہے، کس کے پاس؟ غاصب کے پاس وہ شے اگر باقی ہے تو مطالبے کا حق نہ صرف یہ کہ جس نے ماخوذ بالمعاطات کیا ہے اس کو ہے، بلکہ مالک اصلی کو بھی اس کے مواخذہ کرنے کا، مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ صُورَةِ غَصْبِ الْمَأْخُوذِ بِالْمُعَاطَات، وہ شے جو ماخوذ بالمعاطات ہو چکی ہے اس میں غصب کی صورت کے ذکر کے جو کیا ہے کہ یہ غصب سبب بنے گا تملیک کا، یہ قاعدہ جدیدہ لازم آتا ہے۔ مطالبہ کون کرے گا؟ جس کے پاس سے وہ شے لے کر کے غاصب گیا ہے وہ، تو کہنے کہ اس میں کوئی قاعدہ جدیدہ لازم نہیں آتا، بلکہ غصب کی صورت میں اگر عین باقی ہے تو دونوں کو مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ جس کے پاس سے غصب ہوئی ہے ماخوذ بالمعاطات جس نے کیا تھا، منتقل الیہ آپ اس کو کہیے، وہ بھی مطالبہ کرے گا کیونکہ اس کے ہاتھ سے اس نے اخذ کیا ہے۔ مالک اصلی وہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں فالظاہر علی القول بالاباحہ، اگر آپ اباحہ کے قائل ہیں، جیسا کہ مشہور قائل ہیں، ملکیت نہیں آئی ہے نا، جب ملکیت نہیں آئی ہے تو جس کے پاس سے ماخوذ ہوا ہے اس کے پاس اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا مطالبہ کرے، اور جو مالک اصلی ہے، جو مالک اصلی ہے ابھی اس کی ملکیت اس کے اوپر باقی ہے، جب اس کی ملکیت باقی ہے تو وہ بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ الماخوذ بالاباحۃ ان لکل منہما المطالبۃ ما دام باقیا، جب تک اصل شے غاصب کے پاس تلف نہیں ہوئی ہے، باقی ہے، اس نے تصرف نہیں کیا، اس کو بیچا نہیں، کھایا نہیں ہے، تو قول بالاباحہ کی بنیاد پر، قول بالاباحہ کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ قول بالاباحہ کی قید اس لیے لگا رہے ہیں کہ جو مالک اصلی ہے اس کا ابھی اس کے اوپر حق ہے، اور جس نے ماخوذ کیا ہے معاطات کے ذریعے سے قاعدیت کی بنا پہ یہ بھی ضامن ہے، لہٰذا دونوں کو مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ وَإِذَا تَلَفَ، لیکن جس وقت تلف ہو جائے، وہ شے غاصب اس کو بیچ کھائے، توڑ پھوڑ دے، فَظَاهِرُ اطلاقہم التملک بالتلف، تو علماء نے کیا کہا تھا کہ جب تک استعمال نہیں کیا ہے، استعمال کرنے کا حق ہے، اباحۃ التصرف ہے، جیسے ہی تلف ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ تلف مملک ہے، کس کا مملک؟ جس کے پاس آئی ہے، ماخوذ بالمعاطات جو شے ہوئی ہے، اب زید کے پاس سے وہ شے گئی ہے، مالک اصلی کوئی اور ہے، جیسے ہی تلف ہوئی یہ تلف کیا بنے گا؟ مملک بنے گا۔ کس کے لیے مملک بنے گا؟ جو شے جس نے ماخوذ بالمعاطات کی ہے، تلف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کی ملکیت آ جائے گی، جب ملکیت آ جائے گی تو غصب جو غاصب نے تلف کیا ہے، تلف کر رہا ہے غاصب، ملکیت کس کی بن رہی؟ جس نے ماخوذ بالمعاطات کیا ہے اس کی، یعنی وہی مشتری لے کر کے گیا، خرید کر کے گیا، صیغہ تو استعمال نہیں ہوا ہے، قصد تملیک کے ساتھ معاطات ہوا ہے، تو کہنے کہ علماء کے کلام کا ظہور یہ ہے کہ تلف مملک ہے، جب تلف مملک ہے تو غاصب جیسے ہی وہ شے کو بیچ کھائے گا، توڑ پھوڑ دے گا، کچھ بھی کر دے گا، مشتری کے پاس جو شے لے کر کے اس سے غصب کیا ہے وہ اس کی ملکیت بن جائے گی۔ کیوں؟ تلفہ من مال المغصوب منہ، آپ اس کو منتقل الیہ کہیے چاہے مغصوب منہ کہیے، مثلا مشتری کے پاس جو شے گئی ہے، اس نے سمن دیا، مشتری کے پاس ماخوذ بالمعاطات وہ شے ہوئی ہے، اس کو وہ غاصب نے چرا لیا،
अला गासिब ने उसको गस्ब कर लिया और ले जा करके 2 दिन के बाद तलफ किया। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो शय तलफ हुई है मालिक असली की तरफ से तलफ हुई है या मकसूब मिन्हो जो है जिसके तरफ मुंतकिल हुई है मुश्तरी वो उसकी तरफ से तलफ हुई है। कहते तलफ हो जाने के बाद चूंकि तलफ को आप मिल्कियत आवर मान रहे हैं, कौन मशहूर तलफ को मिल्कियत आवर मान रहे हैं, लिहाजा मुश्तरी के माल से वो जाया हुआ है। मुतालिबे का हक किसका रहेगा? मुश्तरी को, बाये को नहीं। बात वाज़ेह हो रही है। जब तक तलफ नहीं हुई थी उसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि मुश्तरी के पास ये अमानत के तौर पर कायलियत की बिना पे उसका जिम्मेदार है और दूसरे इस्तिसाब आदम में मिल्कियत की बिना पे वो मालिक है। जैसे ही तलफ होगी किसके पास से तलफ हुई है? आप तलफ को चूंकि मुमल्लिक मान रहे हैं लिहाजा गासिब के तलफ करने की बिना पर मुश्तरी के पास जो शय थी वो उसकी आननमा मिल्कियत बनेगी, उसकी जेब से जाएगी, मालिक असली की तरफ से नहीं। लिहाजा मालिक असली मुतालिबे का हक नहीं रखता अगर गासिब के पास से शय तलफ हुई है। क्यों? इसलिए कि तलफ को आप मुमल्लिक मान रहे हैं, मालिक असली की उसका क्या हो जाएगा? कीमत का मालिक हो जाएगा जो उसने लिया है। वाज़ेह हुई बात या नहीं? गस्ब के सूरत में गस्ब मुमल्लिक है, इसको गस्ब को मुमल्लिक मानने की सूरत में कायदे जदीदा लाजिम आ रहा था। हमने जवाब इसका ये दिया कि गस्ब मुमल्लिक नहीं है बल्कि गस्ब की सूरत में मालिक असली को भी मुतालिबे का हक है और मुश्तरी को भी मुतालिबे का हक है। लेकिन गस्ब हो के बाद जब तलफ कर देगा तो तलफ को चूंकि आप मुमल्लिक मान रहे हैं इसलिए मुश्तरी को सिर्फ मुतालिबे का हक होगा, मालिक असली को नहीं। फतलफहु मिन मालिल मकसूब मिन्हो नाम लौ कामल इजमाओ कान तलफहु मिन मालिक मालिक लौ लम यतलिफ एवज़हु क़ब्लहु। हाँ, इजमा के यहाँ पे नाम के जरिए से इस्तिदराक कर रहे हैं। वो इस्तिदराक ये है कि अगर इजमा इस बात के ऊपर कायम हो जाए जैसा कि सीरत मुस्तमिरा और इजमा रहा है, वो क्या है कि मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत आवर मानते हैं, यानी मुआमला जो उसके साथ किया जाता है मालिकाना किया जाता है। अगर इसके ऊपर इजमा कायम हो जाए, बहुत तवज्जो सुने कि अगर इजमा इस बात के ऊपर कायम हो जाए कि मुआतात करने के बाद फौरन हर एक दूसरे का मालिक हो जा रहा है, बोलो इस्तेसाब मना कर रहा है, कायदेयत मना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस बात के ऊपर इजमा कायम हो जाए कि मुआतात के बाद लेन देन हो जाता है, अरे लेन देन हो जाने के बाद उसके ऊपर मालिकियत मिल्कियत आ जाती है, तो इस सूरत में जो शय जिसकी तरफ मुंतकिल हुई है उसका मालिक है, उसके एतबार से तलब हुआ। लेकिन अगर इजमा इस बात के बरअक्स कायल हो, वो क्या? लौ कामल इजमाओ कान तलफु मिन मालिल मालिक। एक सूरत ये है कि मालिक असली ने, हमारी मिसाल बाय और मुश्तरी के मद्देनजर रखे, मुश्तरी को हमने शय दे दिया, समन उसका हमने ले लिया, समन में मैंने तसर्रुफ कर लिया, तसर्रुफ करने की वजह से मुश्तरी जो शय ले के गया वो उसका मालिक हो जाएगा या नहीं? यकीनन मालिक हो जाएगा। आपने समन में तसर्रुफ किया, क्योंकि तसर्रुफ करने से मिल्कियत आ जाती है। इबाहतुत तसर्रुफ कब तक है? जब तक कि इस्तेमाल न किया हो तब तक सिर्फ इबाहा है। मिल्कियत कब बनेगी? तसर्रुफ करने की सूरत में। अगर आपने एवज में समन में तसर्रुफ कर लिया, समन में आपने तसर्रुफ कर लिया, मुश्तरी जो शय लेकर के गया वो उसका मालिक हो जाएगा। उसके पास से गस्ब हुई है तो आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। वाज़ेह है। लेकिन अगर इजमा इस बात के ऊपर कायम हो कि मुआमला करने के बाद शय को एक दूसरे की तरफ मुंतकिल करने के बाद एवज अभी इस्तेमाल नहीं किया है, एवज अभी यानी समन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, इस इजमा इस बात के ऊपर कायम हो कि मालिक असली की तरफ से वो शय तलब होगी। अगर इसके ऊपर इजमा कायम हो कि मालिक असली की तरफ से वो शय उसके कि कहीं पे भी रहे उसकी जेब से जाएगी, तो इस सूरत में मालिक असली को ही मुतालिबा करने का हक है। अगर समन को इस्तेमाल कर लिया है तब नहीं, लेकिन अगर समन को इस्तेमाल नहीं किया है और इजमा इस बात के ऊपर कायम है कि मालिक असली का माल है,
लेन देन करने से अभी मिल्कियत हासिल नहीं हुई है, तो फिर अगर गासिब वो ले जा करके तलफ कर रहा है तो मालिक असली की जेब से गया है, मुश्तरी की तरफ से नहीं गया है। नाम लौ का आपके लौला नहीं है जी, हमारे यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है। नाम लौला कामा इजमा का नतलफ हो मिन मालिल मालिक, अगर मालिक के माल की तरफ से इजमा तलफ होने पर इजमा कायम हो जाए और उधर समन को इस्तेमाल नहीं किया है, तब तो बात बनती है कि आप माखूज मिन्हो से कहें कि गस्ब हुआ है और वो उसका मालिक है, लेकिन अगर उसका एवज इस्तेमाल कर लिया तब नहीं। लो लम युतलिफ एवजहु क़ब्लहु क़ब्ल तलफ, अगर तलफ से पहले उसने समन को जो लिया है उसका इतलाफ न किया हो, अगर समन को इतलाफ कर दिया है तब उसका वो जिम्मेदार नहीं है। एक टुकड़ा और पढ़ते हैं। वाम्मा मा ज़कर हो मिन हुक्मिन नमा, नमा के लिए क्या कहा था? 3 नजरिया पेश हुआ था, बल्कि 4 था नमा के सिलसिले में कि अगर मुआताद के जरिए से लेन देन हुआ है और ये नमा हासिल हुआ है तो ये नमा का मालिक कौन होगा? अगर तलफ हो जाता है, आइन तलफ हो जाए तो नमा का हुक्म क्या है, नमा तलफ हो जाए तो आइन का क्या हुक्म है? तो इस सिलसिले में ये कहा गया था कि नमा के सिलसिले में बेचने वाले का तो कुछ तसव्वुर ही नहीं था कि वो हासिल होगा, या नमा के बारे में मामला लेन देन असले आइन के ऊपर, असले शय के ऊपर जब ले हो रहा था तो उसके सिलसिले में कहने कि नमा का हुक्म क्या होगा? जवाब इसका ये मा ज़कर मिन हुक्म नमा फ़ज़ाहिरुल महकी अन बाज़ उलमा के कलाम से हिकायत ये होती है, ज़हूर ये बनता है, इन्नल क़ाइल बिल इबाहते, जितने मशहूर उलमा इबाहतुत तसर्रुफ के कायल थे, किसमें? आइन में इबाहतुत तसर्रुफ के कायल थे, उन्नमा के सिलसिले में उनका क्या नजरिया होगा, क्या बनेगा? इन्नल क़ाइल बिल इबाहते ला यक़ूलु बिइंतिक़ालिन नमा इलल आखिज़, वो जिसने मुआताद के जरिए से माखूज बिल मुआताद आइन को किया है, उसमें जो नमा हादिस हुआ है उसके इंतकाल नमा का कायल नहीं, क्योंकि आइन को मुंतकिल किया है, नमा के सिलसिले में तसव्वुर ही नहीं था। तो कहने कि वो लोग जो कायल बिल इबाहा है, किस चीज में? आइन में इबाहतुत तसर्रुफ के सिर्फ कायल हैं, ला यक़ूल बिइंतिक़ाल नमा इलल आखिज़, जो माखूज बिल मुआता जिसने किया है, जिसके पास वो आइन शय मुंतकिल हुई है, नमा में उसकी तसर्रुफ और जो है उसने इजाजत नहीं दी है, आइन के अंदर तसर्रुफ की जाती है, लिहाजा हुक्म नमा क्या हो जाएगा? आखिज को की तरफ मुंतकिल नहीं होगा, बल हुक्म अस्ल ही, हम नमा का हुक्म उसके अस्ल के साथ हुक्म लगाएंगे। अस्ल में क्या हुक्म है? सिर्फ तसर्रुफ की इजाजत। वाज़े है, इबाहतुत तसर्रुफ, मिल्कियत नहीं है, मिल्कियत मुंतकिल नहीं हुई है, जैसे आइन मुंतकिल नहीं हुआ है, सिर्फ इबाहतुत तसर्रुफ है, उसके ऊपर मिल्कियत नहीं आई है, वैसे ही नमा का भी हुक्म है, ये नमा भी ले माखूज बिल मुआतात करने वाले के हक के पास सिर्फ उससे इस्तेफादा करने की इजाजत है, आइन के से इस्तेफादे की तरह। जब आइन तलफ होगी तो उसके साथ मिल्कियत आती है, वैसे ही नमा का भी हुक्म है, मुकम्मल सारा हुक्म। बल हुक्मुहु यानी हुक्म नमा हुक्म अस्ल ही, हुक्म अस्ल क्या है? मशहूर के नजरिए की बुनियाद पर सिर्फ इबाहा, मिल्कियत नहीं है, लुजूम नहीं है। तो वैसे ही नमा भी जो आइन के अंदर हासिल हुआ है उसका हुक्म भी मशहूर के नजरिए की बुनियाद पर इबाहा का है। एक मरतबा और सुनिए, कहने कि नमा जो आइन में हासिल होता है उसका मालिक कौन है? जिसकी असल की मालिक, जो असल मालिक था उसका है नेमा, या जिसके यहाँ हासिल हुआ, आखिज के यहाँ जो नेमा हासिल हुआ है वो उसका मालिक है। जवाब हमारा ये है, आप मशहूर के नजरिए के कायल हैं, किस चीज में? इबाहतुत तसर्रुफ के कायल हैं। जब इबाहतुत तसर्रुफ आइन में असल के कायल हैं, वही हुक्म नेमा भी रखता है, यानी उसमें भी सिर्फ इबाहा का हुक्म आएगा, मिल्कियत नहीं आएगी। बल हुक्म अस्ल ही वयहतमिलु अन यहदुस अन्निमाउ फिल मिल्किही बेमुजर्रदिल इबाहा। एक टुकड़ा और इसके ऊपर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कह रहे कि ये जो निमा है ना,
یہ نما بعض کے نزدیک یہ کہ یہی حدود سے ملکیت کا سبب بنتا ہے. کیسے مبی تلف ہو جائے تو ملکیت آور ہوتی ہے. یہ حدود سے نما، صرف حدود سے نما بھی ملکیت آور ہے. نتیجے میں حکم نما کیا ہوگا؟ حکم نما حکم اصل کی بنا پر احتمال یہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جو ماخوذ بالمعاطات اصل کو جس نے کیا ہے وہی اس کا نما کا بھی مالک ہے. پہلے تو مشہور کے نظریے کی بنا پہ کہا عین صرف اباحہ ہے تو اس کے نما میں بھی یہی حکم ہوگا. لیکن احتمال یہ ہے کہ حدود سے نما بالکل تلف کی طرح سے ہے. حدود سے نما عین میں کیا ہے؟ تلف کی طرح سے ہے، تصرف کی طرح سے ہے. آپ نے کہا تصرف مملک ہے، آپ نے کہا کیا نام ہے تلف ہونا کیا ہے؟ ملکیت آور ہے. یہ حدود سے نما بھی ایک قسم کا تلف کرنا، شے کو استعمال کرنا کہلائے گا. لہذا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَحْدُثَ النِّمَا فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الْإِبَاحَةِ، صرف اباحت کے قول کی بنیاد پر وہی ملکیت حاصل ہو جائے نما کے حادث ہونے سے. انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.